Hi, welcome everyone for this live today. And we are waiting for a guest to come. आज हम कोविड और ब्लैक फंगस के बारे में बात करेंगे एंड आई एम श्योर उसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. सो वी हैव आवर एक्सपर्ट्स जॉइनिंग इन. Just waiting for them to join. तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं ब्लैक फंगस को लेके या कोविड को लेके, यू कैन ऑलवेज पुट देम इन दिस चैट एंड एक्सपर्ट्स हमारे उन क्वेश्चंस का आंसर देंगे. बहुत ज़्यादा घबराने की डरने की बात नहीं है, बिकॉज जितना हम डरते हैं जितना हम घबराते हैं उतनी सिचुएशंस हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है. इट इज़ रादर for the situations. Hello, we have Dr. Mahima with us. Hello, Dr. Mahima. Hi. And Dr. Manushree has also joined. Dr. Mahima is a dental surgeon. She's a consultant dentist and a cosmetologist. Welcome, ma'am, for this show. Welcome, Dr. Mahima. Dr. Manushree has also joined. Dr. Manushree is an ophthalmologist, eye specialist. मैम आपकी जो ब्यूटीफुल आईज है वो बता रही है कि आप आंखों के डॉक्टर हैं. Thank you so much, ma'am. तो she's an ophthalmologist and assistant professor in government hospital Indore. मैम आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है? It's Mahatma Gandhi Medical College and MY Hospital, Maharaja Yashwant Rao Hospital. Yeah. हाँ. तो आज हम सब मिलकर कोविड के बारे में अपने एक्सपर्ट्स से जानेंगे. And here we have Dr. Sachin Sharma also with us. Welcome, Dr. Sachin. He's an ENT specialist, dental surgeon. He's an expert with आपके कान नाक में कोई भी गले में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर would give you the solution. So whatever questions you have, you can ask. He's consultant in Gopinath Hospital, Jaipur, and well-known doctor for ENT. तो आज हम कोविड और ब्लैक फंगस माइकोम्यूकोसिस के बारे में बात करेंगे. So welcome all of you once again. Thank you very much. आप लोग काफी पेशेंट्स ऐसे देख रहे होंगे ना, तो आई वुड रियली वांट टू नो, हमारे साथ जो व्यूअर्स हैं उनके भी बहुत क्वेश्चंस होंगे. तो डॉक्टर सचिन, आपसे मुझे एक क्वेश्चन रहेगा. सबसे पहले तो आप मुझे इन जनरल लेट पीपल नो व्हाट कोविड इज एंड व्हाट डू वी एक्चुअली फेस इन दैट. हमारे प्रॉब्लम क्या होती है इफ वी टॉक अबाउट एएनटी. तो कोविड से क्या क्या खतरे हो सकते हैं if we talk about ENT? Yeah, see, coming to the point, COVID की वजह से एक्चुअली क्या रहता है, जो फर्स्ट वेव में देखा गया था. Am I audible? I hope no, not much. आपकी वॉइस थोड़ा लो है, पिच लो है. Just a second. Now am I audible? A little better. If I can, your phones आप use कर रहे हैं. Yeah, I'm using earphones. So now am I audible? Is it better? Little better. Okay. You have to be little loud. आप थोड़ा जोर से बोल दीजिए. Yeah, fine. So I think now is it better? Hello. Little better. There's some disturbance. Yeah. There's some disturbance. I think दो phones अगर आसपास भी होते हैं तो भी disturbance होता है. तो एरिया अगर दूर हो जाए नेटवर्क का तो ज्यादा ठीक रहेगा. Now is it better? It is better now. Better. Abhi perfect. So that's great. So let's start. So yeah, coming to the point, in the first wave, usually जो symptoms देखे गए थे, they were the loss of smell.
because जो COVID हाँ होता है, हमें पता है, जैसे कि हमें बताया गया, and we have seen in news also, कि whenever we inhale, so initially it was considered as a droplet infection. So mode of entry into our body were through our हाँ nose and through our mouth. So whenever this virus enters into our the nasal cavity in our body premises through the nasal cavity or through the oral cavity, it starts affecting initially the nerves, the sensory nerves, which are located over here, somewhere here just below the base of the brain, which is known as the cribriform plate. So it starts affecting those nerves, and it causes certain demyelinating changes, which leads to the loss of sensation of smell. Along with अच्छा that, in oral cavity, we do get hypogeusia, ageusia, that is a decreased sensation or maybe a loss of taste sensation. So they are termed as a nasal COVID or an oropharyngeal COVID. Then later on, whenever the infected person, whenever he breathes in and out, so the gradually the infection goes and involves the lower respiratory tract, that is our lungs, and then it migrates and depends upon the host immune response as well as the concentration of the virus in the body, causing the severity of the infection, like pulmonary COVID, pneumonia, those patches and all. So initially in the first wave, these few things were seen. But now in the second wave, what we all are seeing is you must have heard the name black fungus. Yes, the black हाँ fungus, which is also known as the mucormycosis, by now everyone is quite well aware about it because media has covered it very everyone is nicely. well aware about it and everyone is scared about it. Yeah, I really know. So, but there are certain precautions what we need to take to avoid those fungal How does it infections. affect वो आपकी nose को या ENT like throat or ears? Does it affect ears also? मतलब कैसे वो effect कैसे करते हैं? See, the process is, Black first of all, fungus. let's come to a point. How do you get a mucor? How do you get Hmm. that black fungal infection? So the thing is, now in the second wave, we all know was highly infectious as compared to the first wave. हाँ There are probabilities and possibilities. Still, the genome report is awaited. It is considered that the second wave is due to the mutant COVID virus, that is B167. That is a mutation in the virus which has caused this drastic second wave and with the highest morbidity as well as the mortality, affecting huge amount of population despite a lockdown effect. So it has affected our immune response. There is an immune dysregulation due to this variant, and along with that, there is the body, those cells which have a tendency to fight those fungal spores or to the bacteria. Those are immune defense mechanism, which has a phagocytotic activity. They are hampered, and the through this the virulence of the particular this fungal spores or the infection, then they get further virulent because the mucor fungal spores are usually present normally in the air atmosphere. Right now we are breathing in and out, we might be breathing in and out the spores of the those fungus, those mucorales, but still we are not affected because our immune system is functioning quite well. But once you get COVID, there is an immune dysregulation. Along with that, the neutrophils and the lymphocytes, which have a tendency to fight to that fungal spores, it get affected. And to add to that point, when to avoid a cytokine storm due to COVID, doctors they tend to add low dose steroids, so they further suppresses the immunity of an individual, leading to the high virulence activity of those rare species. Hmm. So this is how you get. So you've explained. Yes. हाँ हाँ. So this is how you get those black fungus or the mucormycosis. So the initial thing is, whenever we inhale, we breathe in, those fungal spores travel through the air, through our nose, and then we have a very small bones. They look like small, cherries like bones. Those are the turbinates, and it gets located over there.
And once the host immune response is not good, or maybe the person is on load on steroids, and even this has been seen that this time this variant is affecting pancreas, causing unexplained rise in the blood sugar levels, even in those patients who are COVID affected, but they were not at all on steroids, or they were on very low dose steroids. See, the steroids have been, doctors, they have been using steroids for certain medication, for certain diseases as a primary medication. Maybe the rheumatoid arthritis, maybe any autoimmune disorder, maybe skin infection, maybe in psoriasis. Doctors, they have been using steroids, but that doesn't mean it causes mucormycosis. It is the COVID which is causing an immune dysregulation, and add on to that the use of steroid to prevent those cytokine storms, to prevent those further damage to our lungs, which we need to add as per the guidelines of the CDC. It is an international guidelines. So we have to give steroids. So despite all those things, they gives an there's an immunity compromise is there, which leads to this black fungal infection. And the tendency of this infection is those mucorales, in those there are small hyphae which they have a tendency to invade our blood vessels. It invade our blood vessels, then on that side the blood which is going to the tissue for its viability is compromised. The tissue goes into the necrosis, the tissue dies, and then it becomes black in color. And this is how it starts spreading. It spreads maybe the locally from your nasal cavity to your orbit. Okay. So basically you've told कि कैसे वो fungus अंदर जाता है, and how does it affect our body also. So Yes. that is how it affects many parts of the body. Yeah, it so affects I would many come parts. up to so when it affects so many parts, I would ask Dr. Mahima also कि oral health जो होता है उसमें भी उससे भी फर्क पड़ता है क्या, बिकॉज इट्स एयरबॉर्न. तो अभी हम कभी इतना बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, एंड इट्स नेचुरल दैट इट गोज इन द माउथ आल्सो. सो हाउ डज इट हाउ डू वी हैंडल दैट? सो बेसिकली डज ओरल हाइजीन हैव एनी रोल? कोविड-19 में ओरल हाइजीन का भी रोल होता है क्या हमारे टीथ का? Yes. डेंटल एरिया इन सब का? Thank you so much, ma'am, for giving me this platform. And I'm saying this so because oral health is usually the subject which people do not take very seriously. कि दांत ही तो है, ठीक है, लेकिन क्या सीरियस प्रॉब्लम्स हमारे को पुअर ओरल हाइजीन से हो सकती हैं, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है. तो क्योंकि आज मुझे ये आपने प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हमको देख रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगी कि ओरल हेल्थ और ओरल कैविटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत सारे इन्फेक्शंस में. और क्योंकि अभी हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कोविड-19 में भी ओरल कैविटी और ओरल हाइजीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. हमारे मुंह में, स्पेशली हमारी टंग पे और हमारे गम्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स में जो म्यूकोसा होता है, उसमें एक एंजाइम होता है ACE2. उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, दे एक्ट एज ए वेरी गुड रिसेप्टर्स फॉर द वायरस, द कोविड-19 वायरस. तो जब हम लोगों के मुंह में हमारी ओरल हाइजीन थोड़ी पुअर होती है, तो ये रिसेप्टर क्वांटिटी में हमारे मुंह में होते हैं. और क्योंकि ये जब हाई क्वांटिटी में होते हैं और ये वायरस के लिए रिसेप्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वायरस इसके ऊपर आप ये मान लीजिए बॉन्ड बना लेते हैं. एंड दैट इज हाउ द वायरस रेप्लिकेट्स इन आवर माउथ एंड इट एंटर्स इन आवर बॉडी. So people who are having poor oral hygiene are more susceptible for the virus contraction. Number 1. Okay. Number 2, क्योंकि ये जो वायरस है, मैंने जैसे बताया, सलाइवरी ग्लैंड जो होता है उसके भी म्यूकोसा पे और उसके भी अंदर ये रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ACE2. और इन रिसेप्टर्स को कोविड-19 का वायरस जो है, अपना कोविड वायरस, वो इफेक्ट करता है. तो इस वजह से हमारे मुंह में जो सलाइवा है, ग्लैंड्स में सलाइवा बनना बंद हो जाता है, कम हो जाता है. उसकी वजह से हमारा मुंह जो है ड्राई माउथ रहता है, सूखा हुआ रहता है. इस कंडीशन को हम ड्राई माउथ कहते हैं.
और जब ड्राई माउथ होता है तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा थूक है वो सिर्फ एज ए ल्यूब्रिकेंट काम नहीं करता है खाने को चबाने के लिए, बल्कि इसके अंदर काफ़ी ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि एज ए डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो ये वायरस को, जो वायरस मल्टीप्लाई करता है उसके अगेंस्ट वो प्रोटीन्स काम करते हैं। अब हमारा मुंह क्योंकि सूख गया है, तो सूखा हुए मुंह में हमारा सलाइवा कम है, तो वो जो सलाइवा प्रोटेक्ट कर रहा था वायरस के रेप्लिकेशन को, वो नहीं हो पाता है, तो वायरस का रेप्लिकेशन और ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हाउ ओरल कैविटी इज इम्पोर्टेंट इन कोविड-19 ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। अब हम जैसे जैसे आगे बात करेंगे मैं जरूर इसके बारे में आपको और बताऊंगी। So I come to Dr. Manushree now. Dr. Manushree, eyes, how are eyes affected with it? How to take मैम eyes? जो है इसको हम दो पार्ट्स में अगर देखें, कंसिडर करें, एक तो कि आईज में कोविड की वजह से क्या सिम्टम्स आते हैं या फिर किस तरह से आईज अफेक्ट होती हैं कि हम ये सोच सकते हैं कि शायद कोरोना वायरस शरीर में आ गया है और उसने अपना जो सिम्टम्स हैं वो लाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो रेड आई इज वन ऑफ द सिम्टम, पर रेड आई अलोन इज यूजुअली नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो मेन एम है इसका, जैसा कि मुझे लगा कि यू वांट टू रिलीव द एंजाइटी ऑफ द पीपल, सो let I make it very clear that this is a season of pollen and allergic conjunctivitis is very common in the season. और मार्च में ही इंडिया में यूजुअली कोविड की वेव भी आ रही है हर साल, तो इट इज ओवरलैपिंग कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के केसेस अप्रैल मई में बढ़ते हैं और इसी टाइम पे कोविड भी बढ़ रहा है। तो एवरी रेड आई पर्सन, उसके दिमाग में ये एंजाइटी आ जाती है शायद मुझे कोरोना हो गया है। So if you are having other symptoms, like if you are having fever, myalgia or other symptoms which are related to COVID-19 and you have a red eye, that red eye with other symptoms is a supportive diagnosis. Only red eye is usually not COVID-19. एक ये चीज। दूसरा, COVID-19 में सडन डिमिनिशन ऑफ विजन भी कई पेशेंट्स में मिला है। दैट इज यूजुअली जब कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कोरोना वायरस है वो हमारे ब्लड को थिक कर देता है। इट इज लाइक जो जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड को थिक करता है, नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलरली कुछ मैकेनिज्म के थ्रू इसमें डी डायमर आपने सुना होगा, वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लड थिकनिंग हो जाती है। तो जो गाढ़ा खून रहता है उसकी वजह से नसों में ब्लॉकेज बढ़ जाता है। तो उस वजह से अगर आँख की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है तो अचानक से मरीज को दिखना बंद हो जाता है। तो सडन डिमिनिशन ऑफ विजन कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ कोविड-19। हमने ऐसे भी मरीज देखे हैं जिनको अचानक से दिखना कम हुआ है, जिनको कोई और मॉर्बिडिटी नहीं थी, यानी कोई और बीमारी जैसे कि बीपी, शुगर, इनका बड़ा होना ये नहीं थी, केवल वो इसी कंप्लेन के साथ आए थे। बाद में हमने उनका डी डायमर कराया, बढ़ा हुआ मिला, और फिर उनका कोविड टेस्ट कराया तो कईयों में वो भी पॉजिटिव आया। और अन्यथा भी सडन डिमिनिशन ऑफ विजन इज ऑलवेज एन ऑक्यूलर इमरजेंसी। तो वो मरीज जिनको अचानक से दिखना कमजोर हो रहा है वो जरूर डॉक्टर के पास जाए। घबराए नहीं, हर चीज का इलाज है, पर उसको छोड़े नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आती हूँ कि जो आंखें हैं उनका जो मूवमेंट है वो या तो कम हो जाता है या रुक जाता है। कई बार ये एक आंख में हो सकता है, कई बार ये दोनों आंखों में हो सकता है। तो यदि यूनिलैटरली या बायलैटरली आपकी आंखों का मूवमेंट पेनफुल हो रहा है या रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, तो फिर इट कैन बी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस ऑल्सो, बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड ऑल्सो। तो ये दोनों ही कॉम्प्लिकेशंस में हो सकता है कोविड की, और जो कि आगे अपन बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शंस। कोविड से खुद से भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन आ सकता है, और जो ब्लैक फंगस है उससे भी इस तरीके का प्रेजेंटेशन आ सकता है। तो इस तरीके के प्रेजेंटेशंस पे आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। ये किसी अन्यथा वजह से भी हो सकता है, और चाहे वो कोरोना हो या कोई अन्यथा वजह हो, इलाज मुमकिन है। तो घबराने की बात नहीं है, पर डेफिनेटली आपको अलर्ट रहना है कि इस तरीके के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें हमारे डॉक्टर से, फिजिशियन से
ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ईएनटी सर्जन, डेंटिस्ट जो आपके हैं रेगुलर, उनसे आप जाके बात कर सकते हैं। आजकल तो कम्युनिकेशन फोन के थ्रू भी हो सकता है, फिजिकली वो आपको बुलाएं तब आप अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, जैसे भी आपके लिए फीजिबल हो। थैंक यू। डॉक्टर सचिन, आप मुझे बताइए कि जैसे एक तो स्मेल का सिम्टम बहुत कॉमन है जो सबको पता है, सो इज इट अफेक्टिंग ईयर्स आल्सो? कानों को भी अफेक्ट कर रहा है क्या? आर देयर एनी अदर सिम्टम्स व्हिच कैन बी सीन, एंड इफ दोज आर द सिम्टम्स व्हिच आर सीन, आर दे कंसिडर्ड डेंजरस? क्या उसको हम ये मान सकते हैं कि ये डेंजरस है, उससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है? मेरे ख्याल से वहाँ नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, तो वो हमको सुन नहीं पा रहे हैं। उनका नेटवर्क वापस आता है तब तक मैम आपसे ही मैं, डॉक्टर मनुश्री, आपसे ही मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। हाँ आप जी। मुझे बताइए कि जैसे इसके अंदर लोग डरते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो विजन लॉस भी हो जाएगा, आई रिमूव करनी पड़ेगी। सो हाउ कॉमन इज दैट, विजन लॉस, आई रिमूवल? ये देखिए, जैसा कि डॉक्टर सचिन ने बताया था कि जो स्पोर्स हाँ है फंगस के, वो और हाँ डॉक्टर महिमा ने भी बताया, द एंट्री इज थ्रू द नोज एंड द ओरल कैविटी मोर हाँ कॉमनली। जो फंगल हाँ स्पोर्स है वो आईज के थ्रू नहीं जाते हैं, वो हाँ आईज में स्प्रेड होके आते हैं। वो नोज हाँ में जाते हैं, वहां पे रेप्लिकेट होते हैं, बढ़ते हैं, या फिर ओरल कैविटी के थ्रू बढ़ते हैं, और वहां से कंटेजियस स्प्रेड, जिसको हम कहते हैं कि एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, या फिर जैसे एक घर से पड़ोस वाले घर की तरफ जाना, उस तरीके हाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं, और उसी प्रकार से वो नाक के रास्ते से आंखों तक आते हैं। तो हाँ पहली चीज नाक के रास्ते से जो नाक के सिम्टम्स हैं, जैसे कि अभी सर ने बताए थे, वो आगे भी बताएंगे, उन सिम्टम्स को अगर हम पहचान लें तो कई बार आई इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरी बात, अगर आई के सिम्टम्स के साथ ही हमें पता चलता है, जैसे कि हमें डबल दिखाई दे रहा है किसी को, मरीज को, या फिर जैसे पहले कहा था कि आंखों में मूवमेंट पेनफुल हो रहा है या प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी अगर मरीज सही टाइम पे पहुंच जाता है तो ईएनटी सर्जन की मदद से वो वाला पार्ट देखा जाता है। प्लस आंख का जो है, हमारे पास मेडिकेशंस हैं जिससे हम उसको वहीं रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो आंख की रोशनी चले जाना या फिर आंख निकालने की जरूरत पड़ना, ये बहुत कॉमन नहीं है। इट इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। और ये घबरा के डॉक्टर के पास नहीं जाना कि नहीं हमारी आंख निकल जाएगी, ये नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं आप जो मरीज है उसको उसकी जो स्थिति है उसमें वो जरूरी हो एक्सेंट्रेशन करना। हो सकता है कि वो वहीं रुक जाए इन्फेक्शन, और वापस रिग्रेस भी हो जाए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि गॉड फॉरबिड अगर कभी डॉक्टर्स को लगता है जरूरी है, तो इन एनी केस लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जान है तो जहान है, तो लाइफ बचाना इज द प्राइमरी एम, तो वो हमें बचाना है। सेकेंडरी इज विजन एंड थर्ड इज कॉस्मेसिस। तो ये इस ऑर्डर में हमारी प्रेफरेंस रहती है, डॉक्टर्स की भी और किसी भी इंसान की। तो इस तरह से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं हमारे सिम्टम्स के हिसाब से। अगर हम जल्दी पहुंच रहे हैं तो डेफिनेटली वी कैन अवॉइड दीज कॉम्प्लिकेशंस। सो डॉक्टर सचिन, हम आपके पास वापस, आप ये सवाल मैं आपसे वापस पूछती हूँ। मैं लक्षणों के बारे में जानना चाह रही थी कि क्या और भी कोई देयर आर मोर सिम्टम्स, और भी लक्षण है? नोज का स्मेल का इज अ कॉमन थिंग व्हिच एवरीबॉडी नोज। इज देयर एनीथिंग एल्स आल्सो व्हिच अफेक्ट्स? यस, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि अब अलोंग विद दैट, नाक का जैसे बंद होना, सांस लेने में हाँ दिक्कत होना, हाँ साथ ही साथ में कभी कभी क्या होता है कि नाक से अगर कोई ब्लीडिंग आ जाती है, या हाँ नाक और आंख के पास लाल रंग का सूजन आ जाता है, हाँ या या फिर अगर आपके वहाँ पे क्रस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, या जब नाक साफ करते समय यू फाइंड अ वेरी ब्लैक थिक क्रस्ट जो कि साफ अच्छा करते समय बाहर आए, इन चीज़ों का हमें हाँ खासकर ध्यान रखना है। कोविड का अभी तक कान को ऐसे अफेक्ट करे कहीं ऐसा डायरेक्टली अभी आया नहीं है,
क्रस्टिंग जरूर हो सकती है, जिसकी वजह से जो हमारे कान को और गले को जो ट्यूब जोड़ती है, जिसको यूस्टेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब कहा जाता है, उसका जो एंड जो गले में खुलता है, अगर वो वहां क्रस्टिंग हो जाए तो देन इट माइट अफेक्ट आवर हियरिंग, इट माइट गिव प्रेशर इन आवर ईयर, जिस साइड की उस ट्यूब को उसने अफेक्ट किया, मे बी राइट और लेफ्ट। जो मैंने आपको भी नाक के सिम्टम्स बताए हैं, अगर वो होते हैं तो देन यू नीड टू कंसल्ट an ENT स्पेशलिस्ट। कहीं पोस्ट कोविड आपको म्यूकोर के चांसेस तो नहीं है। हाँ। और बाकी जो आई सिम्टम्स है, जैसे डॉक्टर मनुश्री जी ने बता दिया है, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ये आपको उन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कुछ हो, देन डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। सो आर दे कंसिडर्ड डेंजरस? यस, दे आर कंसिडर्ड एज डेंजरस। अगर जैसे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, जैसे नाक से थोड़ा सा ब्लड आना, इनफैक्ट स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड, जब आपको कोविड है या आप कोविड से रिकवर कर गए हैं, वॉट एवर, चाहे आप घर पे आइसोलेट रहे हो या आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे हो, ऐसे केसेस में अगर होता है और आपको नाक में से ब्लड आना, नाक बंद होना या फिर नाक से जो थिक क्रस्ट निकलना, दे माइट इंडिकेट्स टुवर्ड्स म्यूकोरमाइकोसिस, द ब्लैक फंगस। जितनी जल्दी आप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, दे विल हेल्प यू आउट इन दैट, जिससे कि डिजीज का प्रोग्रेशन जो है उसको रोका जा सके, उसको आंखों की तरफ जाने से, ब्रेन की तरफ जाने से रोका जा सके। क्योंकि जो डिजीज है जो आंखों में जाती है, डायरेक्टली बाहर से नहीं जाती है, ये अपने नाक के थ्रू अंदर से जो आंख को जो कनेक्शन है वहां से ये आंखों में स्प्रेड होती है। बाय द टाइम आंखों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना या फिर विजन का कम हो जाना, ये बात इंडिकेट करता है कि ये हमारे ब्रेन के आसपास के इलाके में है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इसको ब्रेन से, मतलब बहुत जल्दी ये उस रास्ते से ब्रेन के अंदर एंटर कर सकती है। इन चीज़ों को हमें खासकर ध्यान रखना है। जितनी जल्दी हम कंसल्ट करेंगे, जितनी जल्दी हम इलाज लेंगे, जितनी जल्दी बीमारी का पता लगाया जाएगा, उतनी मॉर्बिडिटी, उतनी डेड टिश्यू को निकालना उतना कम होगा, इलाज बहुत लिमिटेड होगा, हमें एक्सटेंसिव सर्जन्स को एक्सटेंसिव सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। So this is a good for both surgeon as the patient as well. Thank you for this question. Dr. Mahima, Dr. Mahima का network it's buffering. Network is an issue. तो डॉक्टर मनुश्री से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेती हूँ। बाय द टाइम शी कम्स बैक उनका नेटवर्क वर्क करता है। तो इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या रहता है? ट्रीटमेंट देखिए, फिर आपका एक्सटेंट, हाँ जी, एक्सटेंट कितना हुआ है इन्वॉल्व, दैट वुड डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जैसे कि अगर सर ने बोला कि हम नाक के सिम्टम से ही इनको पहचान लें और अर्ली नेजल डिब्राइडमेंट, जैसा कि सर ने बताया, अर्ली हम नाक के रास्ते में ही इसे रोक लें, आँख तक नहीं पहुंचने दें, और दिमाग तक तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा जब आँख तक नहीं पहुंचा है। तो उस कंडीशन में डिब्राइडमेंट के बाद में मोस्टली पेशेंट, हालांकि ये अभी इतनी तादाद में पहली बार आया है, बहुत ज्यादा रिसर्चेस पहले नहीं हुई हैं इस पे, पर जितना कि अभी के इस वेव के हमें एक्सपीरियंस से दिख रहा है, मोस्टली 3 to 6 वीक पोस्ट ऑपरेटिवली मरीज जो है वो डिस्चार्ज के लायक हो जाता है, घर पे जा सकता है, फॉलोअप, क्लोज फॉलोअप में रह सकता है। तो 3 to 6 वीक्स के बीच में वेरी करता है ट्रीटमेंट। अगर डिजीज ज्यादा प्रोग्रेस कर गई है, जैसे कि आँख तक पहुंच गई है, या फिर आँख में भी हम अलग अलग कंपार्टमेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं कि वो मीडियल पहुंची है, पोस्टीरियर पहुंची है, लेटरल पहुंची है, तो डिपेंडिंग कि वो किस एक्सटेंट तक पहुंच रही है, हम तय करते हैं कि हमें आँख के इंजेक्शन लगाने हैं या फिर आँख की सफाई करनी पड़ेगी या उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो जितना अर्ली उसका डायग्नोसिस होगा, तो पोस्ट ऑपरेटिवली वो ही अगर जो रहता है दैट इज यूजुअली 4 वीक्स। और अगर वो दिमाग तक फैल रहा है या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आई तक जा रहा है, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टे बिकम्स मोर, और लाइफ प्रोग्नोसिस जो है, जो हम कहते हैं कि जीवन बचाने की जो गुंजाइश है, उसमें फिर कमी आ जाती है और स्टे बढ़ जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना जल्दी उसको टैकल कर रहे हैं। और
अगर अर्ली इंटरवेंशन कर लें तो यूजुअली 3 to 6 वीक्स के बीच में पेशेंट डिस्चार्ज लाइक हो जाता है। 3 to 6 वीक्स में हो जाता है। और अगर अर्ली इंटरवेंशन हो। ओके ओके, ठीक है। डॉक्टर सचिन, आई थिंक डॉक्टर महिमा वापस रीजॉइन करने का कोशिश कर रहे होंगे। डॉक्टर सचिन, आप मुझे ये बताइए कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं नेजल, कि वो नेजल लेवल पे ही। एक तो सबसे पहले आपसे एएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत जरूरी होता है, उसके अलावा व्हाट इज द फर्दर प्रिवेंशन? आपका साउंड नहीं है। Yeah, can you hear me? Am I audible now? हाँ, जी। yes yes। See, the thing is, सबसे पहला क्या है, हमें जो है, अगर आपको कोविड हो चुका है, then what we recommend is that you should go for a diagnostic nasal endoscopy. It's a DNE, जिसमें it is absolutely painless and it is an OPD based procedure. नाक के हिस्से को अंदर सुन कर दिया जाता है. We introduce that nasal endoscope and we visualize the area. जहाँ हमें डाउट होता है वहां से हम उस पार्ट की हम बायोप्सी ले सकते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली पेनलेस अगेन, और अपन उसको लैब में भेज सकते हैं टू इवेलुएट क्या ये म्यूकोर है या और कुछ है, एंड वी कैन सी द फर्दर सराउंडिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो डायरेक्ट हो गया कि दैट यू पेशेंट आपके ओपीडी में आया, हमने उसको एग्जामिन किया एंड वी एडवाइज देम अकॉर्डिंगली. डेली यू नीड नॉट टू गो फॉर दिस डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन. नीड टू वॉच, अगर आपकी ट्रीटमेंट, कोविड के ट्रीटमेंट के दौरान शुगर बढ़ी हुई हो, अनकंट्रोल्ड हो, या फिर मे बी इन यंग पेशेंट्स, व्हाट आई हैव सीन इन माय ओपीडीज आल्सो, दोज हु हैव बीन ऑन स्टेरॉइड, व्हेन आई गॉट द ब्लड शुगर डन, तो उनका ब्लड शुगर भी रेज्ड आया था बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स. तो एक आप रेगुलर अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कराते रहें सो दैट आपका ब्लड शुगर पे चेक रहे. दूसरा, इनिशियली 10 to 15 डेज में एक बार नेजल एंडोस्कोपी करवा लें डिस्पाइट यू डोंट हैव एनी सिम्टम्स, बिकॉज अगर सिम्टम्स आने से पहले आप करवा लेते हो और लोकेट हो जाता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है रादर आपके सिम्टम्स आए. क्योंकि अभी तक जितने भी सिम्टम्स हैं, आँख के पास यहाँ पे लालपन आ जाना, आँखों का इन्वॉल्व हो जाना, दीज आर ऑल इनटू एडवांस स्टेजेस. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, ये एडवांस स्टेजेस हैं, इसमें एक्सटेंसिव सर्जरी से ज़रूरत होती है, और बहुत बार होता है द डिजीज लाइज जस्ट नियर टू द ब्रेन. तो एडवांस स्टेज पे जाने से पहले गेट अ डायग्नोस्टिक नेजल एंडोस्कोपी डन. अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ जो चीज़ें हैं हम उनको रोक सकते हैं घर पे बैठे, इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज वेयर अ मास्क. आप जब भी घर में हैं, जब झाड़ू पोंछा हो रहा है, द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल शुड बी वेयरिंग द मास्क, नंबर 1, सो दैट, क्योंकि जो म्यूकोर के जो स्पोर्स हैं वो हमारे घर में भी हैं, डस्ट में भी रहते हैं. अवॉइड, देन सेकंड थिंग इज अवॉइड गार्डनिंग, दो इट इज वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट मेक्स यू लाइवली. स्टिल इफ यू कैन नॉट एंड यू वांट टू डू दैट, तो आप जो है मास्क लगाएं, डबल लेयर मास्क लगाएं, चश्मा पहने, एंड आप अपना आराम से अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं. थर्ड थिंग व्हाट आई रिकमेंड इज नेजल वॉश, जो कि अपने अधिकतर जो इंडिया में, भारत में कहा गया है जल नीति करना, तो जिसकी वजह से जो भी स्पोर्स हमारे नाक के पास से नाक के हिस्सों में जमा होते हैं, दे इजीली गेट वॉश्ड ऑफ, दे डोंट स्टे. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको म्यूकोर नहीं होगा, दोज हु आर ससेप्टेबल, बट यस द चांसेस दे मे रिड्यूस. सो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. Monitor your blood sugar, wear mask, and also daily change your mask. Please do not repeat the same mask again and again. आप अंदर की तरफ सर्जिकल मास्क पहने. सर्जिकल मास्क इज नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, 2.5 से 3 रुपए का एक मास्क आता है. इट इज अ 3 लेयर मास्क, जिसमें एक साइड इज अ डार्क कलर, द अदर साइड इज अ लाइट कलर. So I'm just telling you how to wear this surgical mask. सबसे पहले सर्जिकल मास्क वो लें जिसमें नोज पिन हो. आपने देखा होगा एक मास्क के पास ऊपर एक पिन रहती है, विच यू फील एक थिक रिजिड ट्यूब रहती है, दैट इज अ पिन. वो पिन आपके नेजल ब्रिज को प्रॉपर्ली कवर कर लेती है, सो दैट डस्ट डजंट एंटर इनटू योर दिस एरिया, द कवर्ड एरिया.
सो नोज पिन हमेशा उस मास्क में हो, वो ऊपर की तरफ हो। पॉइंट नंबर 2, जो मास्क का डार्क साइड है, द डार्क ब्लू कलर, वो बाहर की तरफ होना चाहिए। द लाइटर शेड एरिया, द लाइटर ब्लू कलर और स्लाइटली व्हाइट एरिया जो है, दैट शुड बी फेसिंग योर स्किन. So this is how you should wear a surgical mask, and it should be covering your face from almost from a nasal bridge up to your chin. So this is the right way to wear a surgical mask. उसके ऊपर आप N95 पहन लें, because see N95, I agree it is costly affair, and daily we cannot use the अपने N95. आप ज्यादातर जो लोग देखा गया है कि लोग कॉटन मास्क पहनते हैं. जी. So that कपड़े वाला mask, homemade mask, or that cotton mask, how good is that? See, the cotton mask, the kapde wala mask is as good as no mask. No mask. Let me tell you, yes, it is as good as no mask. Okay. The best way to check your mask is lift your mask. आप उसको अपने जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जैसे एक्सरे फिल्म देखते हैं लाइट के ऊपर ऐसे ऊपर करके, the same way you see the light should not be able to pass through that mask. कपड़े वाला मास्क ये नहीं दे सकता. एक मार्केट में आता है कार्बन मास्क करके, जो पोल्यूशन को, पोल्यूटेंट्स को अट्रैक्ट कर, मतलब अंदर अपनी जाने नहीं देता. इट इज ऑल्सो नॉट गुड. The only two masks which are good is a surgical mask and N95 mask. तो आप अंदर सर्जिकल मास्क पहने, ऊपर N95 पहन ले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इस गर्मी में स्वेट निकलेगा आपके सर्जिकल मास्क में जाएगा. आप सर्जिकल मास्क को डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज मास्क विल गेट ह्यूमिड आपके स्वेट से भी, तो आप उस मास्क को डिस्कार्ड कर देंगे. N95 में स्वेट जाता है, बट वी हैव अ टेंडेंसी टू वॉश दैट N95 मास्क एंड वेयर इट अगेन. सो लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, आप मास्क को वॉश करोगे, मास्क का प्रोटेक्टिव पार्ट खत्म हो जाएगा. मास्क में आपने देखा होगा जब लोग उसको अच्छी तरह धो लेते हैं, सुखा देते हैं, तो उसके रेशे निकल जाते हैं, एंड मास्क की क्वालिटी इज नॉट द व्हाट इट इज रिकमेंडेड. देन इट इज जस्ट अ पीस ऑफ अ क्लॉथ एंड नथिंग एल्स. सो इन चीज़ों का ध्यान रख करके हम जो है न्यूकॉर के होने के चांसेस को काफी हद तक कम कर सकते हैं. So now it's a very good information. सबको ये चीज मालूम होनी चाहिए. लोगों को मालूम नहीं होता है कि मास्क कैसा पहनना चाहिए. अधिकतर लोग कॉटन मास्क के साथ ही दिखते हैं. डॉक्टर मनोश्री, आपसे क्वेश्चन है कि ये जो बीमारी है, is it contagious? Is it communicable? No, it is not. Black fungus. ब्लैक फंगस इज नॉट कंटीजियस. जिस तरह से कोविड है जो बहुत जल्दी एक से दूसरे को फैलता है, ब्लैक फंगस एक से दूसरे को नहीं फैलती है. जैसा कि सचिन सर ने पहले से बताया था कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. इट इज अ यूबिक्विशियस, मतलब हर जगह ये फंगस पाया जाता है. जिसकी इम्यूनिटी वीक है उसमें वो बीमारी करता है. तो ये किसी पर्सन में इम्यूनिटी वीक होने पे ही मैनिफेस्ट होगा. और इट इज नॉट अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कि किसी के छींकने से या खांसने से ये फैले. जो स्पोर्स हैं वो एनवायरनमेंट में वैसे भी प्रेजेंट हैं, और इट इज द एनवायरमेंटल स्प्रेड जिसको हम कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट से आता है, ना कि किसी इंसान से. सो इट इज अ बेसिकली एनवायरमेंटल स्प्रेड. इट इज नॉट कंटेजियस. ब्लैक फंगस का मरीज घर जाके नॉर्मल अपना, उसको आइसोलेशन की जरूरत नहीं है. जब मरीज को ठीक करके डिस्चार्ज करके हम भेजते हैं, मोस्टली इट इज अ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन. तो कोविड तो उस टाइम तक ऑलरेडी नेगेटिव हो गया होता है, और जब फंगस का मरीज ठीक होके घर जाता है तो उसको आइसोलेट करने की आवश्यकता नहीं है. कोई भी उसके साथ में बैठ के उसका ख्याल रख सकता है. इट इज नॉट अ कंटेजियस डिजीज. So it is not contagious. Communicable and contagious. हाँ, communicable contagious नहीं है. So are there any antifungal medicines also? मतलब वो देने की जरूरत पड़ती है, specific treatment? देखिए ऐसा है कि जो एंटी फंगल मेडिकेशन है, हाँ, देखिए एक जो चीज आजकल मीडिया जो की वजह से जो बहुत फैल रही है कि कोई भी बीमारी आती है उसका इलाज मीडिया बता देता है. तो उससे टेंडेंसी लोगों की क्या रहती है कि लोग वो दवाई खरीद के घर पे रख लेते हैं, which is causing a lot of havoc in the country. तो पहली चीज, वो दवाई उस पर्टिकुलर मरीज को दी जानी चाहिए या नहीं, ये केवल
एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है। दूसरी चीज बिल्कुल। जो कि मैं स्पेसिफिकली म्यूकर माइकोसिस के लिए बोलूं, इसकी प्रोफाइलैक्टिक जो कि हम कहते हैं रोग होने से पहले की दवाई नहीं है। जो प्रोफाइलैक्सिस है वो वही है जो अभी सचिन सर ने बताया और महिमा मैडम ने बताया। ओरल हाइजीन, नोज शुड बी क्लियर, और जो जो अभी प्रिवेंशन सर ने और मैम ने बताए वो ही इसका प्रोफाइलैक्सिस है। कोई प्रोफाइलैक्टिक एंटी फंगल दवा नहीं है। दूसरा, एंटी फंगल दवा पहले से लेना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो मरीज में रेजिस्टेंस पैदा कर सकती है। ऐसे मरीज जिन्होंने पहले ही एंटी फंगल खा ली है या फिर एंटी फंगल किसी वजह से ले ली है, वो उनको जब एक्चुअल में कभी बीमारी होती है और एंटी फंगल हमें देने की जरूरत पड़ती है, तो पता चलता है वो दवा अब उन पे काम नहीं कर रही है। तो प्रोफाइलैक्टिकली यानी रोग होने से पहले दवा लेने से नुकसान है, फायदा नहीं है, तो पहले से दवा ना लें। ओके, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब डॉक्टर महिमा हमारे साथ हैं, तो डॉक्टर महिमा आपके काफी सारे क्वेश्चंस पेंडिंग लगे मेरे ख्याल से, कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाउ वुड यू नो दैट ओरल हाइजीन इज गुड और बैड? कैसे पता पड़ेगा कि आपके मुंह का ओरल हाइजीन इज गुड और बैड? फिर आप कैसे उसको वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, ओरल हाइजीन इज गुड और बैड वो तो हम अपने घर पे वैसे पता कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमारे दांतों में या फिर मसूड़ों में, हम इसमें मसूड़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं कोविड इन्फेक्शंस में, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था रिसेप्टर वो मसूड़ों में ज़्यादा पाया जाता है और अपने टंग में। तो मसूड़ों में अगर हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है ब्रश करते वक्त, ब्रश के दौरान हम देखते हैं कि हमारे मसूड़ों में हल्का ब्लीड हो रहा है, या फिर तो उन केसेस में हम ये कह सकते हैं क्योंकि उसमें प्लाक, कहीं ना कहीं प्लाक डिपॉजिट हो रहा है और वो प्लाक हमारे मसूड़ों को इरिटेट कर रहा है, तो इस वजह से वो खून आता है। दूसरा, हमारे कुछ डाइज आती हैं मार्केट में अवेलेबल है, रेड डाई टैबलेट्स करके, उनको अगर हम मुंह में चूसते हैं तो जो भी हमारे दांतों का गंदा एरिया जहाँ पे प्लाक डिपॉजिट होता है वो हाईलाइट हो जाता है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे दांतों की सफाई। आपके दांतों की सफाई वो बफर करने लग गया था? हाँ, कि वो ढंग से नहीं हो रही है। हाँ। तो इस तरीके से हम घर में ये पता लगा सकते हैं कि हम लोग, क्योंकि अभी डेंटिस्ट के पास जाना सब लोग बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं क्योंकि कोविड टाइम्स है, तो हम अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं चाहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम घर पे ही कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं। हाँ। तो उसी के लिए मैं जानना चाहती थी कि डेंटिस्ट के पास कब जाएं? कैसे पता पड़ेगा कि दिस इज द टाइम अब डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? व्हेन टू विजिट अ डेंटिस्ट? डॉक्टर महिमा। देखिए, हाँ, डेंटिस्ट के पास अभी देखिए जो भी एक तो हम लोग जो अभी म्यूकोर इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, म्यूकोर माइकोसिस, उसके कुछ सिम्टम्स, फंगल इन्फेक्शन जो कि है उसके कुछ सिम्टम्स जो है वो हमारे मुंह में भी देखने को मिलते हैं। उन केसेस में अगर मान लीजिए वो हमको देखने को मिलते हैं, देन वी शुड गो टू अ डेंटिस्ट इमीडिएटली एंड वी शुड नॉट अवॉइड। जैसे कि हमारे दांत ढीले हो रहे हैं, अचानक हमें फील हो रहा है कि हमारे दांत हिलने लग गए हैं और उसके पहले हमें कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उन पायरिया, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं पायरिया, नहीं था, फिर भी हमारे दांत अचानक हिलने लग गए हैं, वो एक कारण हो सकता है कि हमारा फंगस इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। या फिर हमारे मसूड़ों में से मवाद आने लग जाए अचानक, सफेद रंग की मवाद आने लग जाए, या किसी आपको खट्टापन दांतों में महसूस होने लग जाए, मुंह में आपको थोड़ा सा सड़न महसूस होने लग जाए, तो उन केसेस में ये हो सकता है कि वो फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो। उन केसेस में आप डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास इमीडिएटली जाएं। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं जो हम यूजुअली अभी अवॉइड कर सकते हैं, जैसे हम कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, टीथ वाइटनिंग का ले रहे हैं, या फिर हम लोग स्केलिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, तो उसको फिलहाल हम अवॉइड करें। छोटी छोटी कैविटीज होती है दांतों में, कीड़े लगे हुए हैं, उसमें दर्द नहीं हो रहा है हमको, तो फिलहाल हम अवॉइड कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे चेहरे पे या गले में कोई सूजन है,
हमको दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा जो कि दवाई लेने पे भी नहीं रुक रहा है, तो उन केसेस में वी शुड डेफिनेटली विजिट अ डेंटिस्ट. वी शुड नॉट अवॉइड दीज सिचुएशंस. सो फॉर दोज केसेस वी शुड गो. अगर ब्रेसेस लगे हुए हैं दांतों में, वो कंटिन्यूसली आपको कहीं इरिटेट कर रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो, क्योंकि वो घाव बन सकता है अंदर, और हम नहीं चाहते कि अभी की स्थिति में कोई भी घाव बने. दैट इज गुड इन्फॉर्मेशन. मैं अपने ऑडियंस से, व्यूअर्स से भी सबसे बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के अगर कुछ सवाल है हमारे एक्सपर्ट्स से, तो आप अपने सवाल टाइप कर दीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स उनका जवाब देंगे. डॉक्टर सचिन, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर ये सारी चीजें हैं, मैं उनका इंटरप्ट आपको थोड़ा सा करूंगी, क्योंकि मेरे बीच में नेटवर्क चला गया था, और उससे पहले हम लोग पुअर ओरल हाइजीन की बात कर रहे थे, तो उस बारे में जरूर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगी कि पुअर ओरल हाइजीन हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था उस टाइम पे, और मैंने आपको बताया था कि हमारी अगर ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है तो हम किस तरीके से वायरल इन्फेक्शन के लिए और ससेप्टेबल हो जाते हैं. लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि पुअर ओरल हाइजीन से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि सपोज अभी कुछ रिसर्चेस हुई हैं हाल ही में, कोविड पेशेंट्स पे की गई थी ये रिसर्चेस, और उसमें ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स के ओरल हाइजीन अच्छी थी वो लोग को रिकवरी में 2 वीक्स लगे, 1.5 to 2 वीक्स लगे. लेकिन जिन पेशेंट्स की ओरल हाइजीन वाज पुअर, इट टुक देम 6 वीक्स टू रिकवर कंप्लीटली. तो आप देखिए कि ओरल हाइजीन का कितना इम्पोर्टेंट रोल है. एंड दिस स्टडीज हैज बीन पब्लिश्ड, एंड रिसर्चेस इस पे और भी अब हो रही हैं. बट दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट ओरल हाइजीन. और काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो ओरल हाइजीन होती है, हमारे मुंह में अगर हम लोग उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करते हैं तो कुछ बैड बैक्टीरियाज हमारे मुंह में डेवलप हो जाते हैं उसकी वजह से. और कुछ सिस्टमिक डिजीजेस हैं जो होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीजेस, ये सब चीज़ें देखी गई हैं. हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ में भी ओरल हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और ये ही सारी चीज़ें अगर आप नोट करें तो कोविड-19 इन्फेक्शंस में भी जो लोग हैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनकी सिवियरिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. प्रोग्नोसिस उन्हीं पेशेंट्स का ज़्यादा ठीक नहीं होता है जिन लोगों को ये सिस्टमिक डिजीजेस होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट कोई प्रॉब्लम. एंड दीज आर ऑल रिलेटेड टू आर oral hygiene. Yes, they are directly related, and these studies have been published. But the irony is, in India, people do not know much about it. people don't know much about it. Oral hygiene को मेरे ख्याल से oral hygiene और mental health के बारे में लोग सबसे ज़्यादा aware हैं. People don't talk much about mental health also, and people don't talk much about the mouth also. Yes. Oral hygiene. डॉक्टर सचिन, आपसे क्वेश्चन है कि आपने जैसे ब्लैक फंगस और इन सब के बारे में बताया, स्टेरॉइड्स, व्हाट आर द रोल ऑफ स्टेरॉइड्स इन दैट एंड हाउ टू कीप अ वॉच अबाउट इट? सी, जो स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स का रोल इट्स नॉट इन द ब्लैक फंगस, बट स्टेरॉइड्स का जो रोल है वो कोविड के अंदर होता है टू कंट्रोल दैट those cytokine storm, those body immune mediated responses. क्योंकि first 7 days जो कोविड के अंदर होते हैं, that is the virus related. After those 7 days, the second week होता है. In that case, there are chances कि body का autoimmune response है, जो cells के अंदर changes हो रहे हैं, कोविड की वजह से हो गए हैं, तो body का autoimmune response generate होता है, जिसकी वजह से excessive inflammation and cytokine storm related चीजें होती हैं. उनको रोकने में, उनको कंट्रोल करने में स्टेरॉइड्स का काफ़ी अहम रोल होता है. बट चूंकि कोविड की वजह से, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कोविड या कोरोना वायरस की वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है. बॉडी के जो सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह उसके ऊपर स्टेरॉइड की वजह से भी जो है इम्यून जो है सप्रेस हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है. उसकी वजह से ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. रूटीनली हम केसेस में, जैसे एलर्जिक केसेस में भी आपने सुना होगा, और कई सारी अदर मेडिकल कंडीशंस में भी स्टेरॉइड्स का काफ़ी अहम रोल रहा है. एंड इट हैज़ बीन proven a very significant. We have a similar question also.
Okay. Is it possible to develop black fungus if the patient recovered COVID but never took steroids? Yes, a very nice question. And my answer is कि अभी कुछ केसेस में देखा गया है जिन्होंने स्टेरॉइड्स नहीं नहीं ली हैं उनको भी ब्लैक फंगस के चांसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं. सो अभी जो देखा गया है उससे यही निकलता है कि इस कोविड में स्पेशली इस वेरिएंट के जिसकी वजह से जो सेकंड वेव आई है, इस म्यूटेटेड वेरिएंट की वजह से इस this variant is responsible for giving this म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन जो कि काफी ज्यादा सीवियर वेरिएंट रहा है. जैसा आपने देखा होगा फर्स्ट वेव जब आई थी डेफिनेटली कोविड से काफी काफी इन्फेक्ट किया था लोगों को, कई लोग एक्सपायर भी हुए थे, बट ब्लैक फंगस के केसेस वर नॉट रिपोर्टेड एट दैट टाइम. नाउ द ब्लैक फंगस हैज कम लाइक अ रैम्पेंट इन द सेकंड वेव. सो इसका कहीं कहीं स्पेकुलेशंस ये माने जा रहे हैं कि इस वेरिएंट का काफी अहम रोल रहा है टू कॉज दिस ब्लैक फंगस एंड एसोसिएटेड, जैसा भी आपने मीडिया में न्यूज में देखा होगा, द येलो फंगस एंड द व्हाइट फंगस इन्फेक्शंस एंड इनवेसिव एस्परजिलोसिस. इस वेरिएंट का काफी हद तक रोल ऐसा माना जा रहा है, बट स्टिल अभी इस पे और रिसर्च होनी बाकी है टू कम आउट. खाली स्टेरॉइड्स को ब्लेम करना इज नॉट करेक्ट राइट नाउ. या बट yes, they might be an aggravating factor, but they are not the only causative factor. Okay. So now I come to Dr. Manushree. Dr. Manushree, what is the recurrence rate? अगर कोई अफेक्ट कर जाता है, किसी की आईज अफेक्ट कर जाती है, इन जनरल जैसे ब्लैक फंगस अफेक्ट कर जाता है, तो रिकरेंस रेट क्या होता है? देखिए इसमें दो चीजें हैं. एक तो अगर मरीज का ऑपरेशन हुआ है वो ट्रीटमेंट पे रहा है कि नहीं और उसका पोस्ट ऑप मेडिकेशन प्रॉपर हुआ है कि नहीं. अगर पेशेंट पूरा ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर हुआ है, उसने टाइमली अपना डिब्राइडमेंट भी करवा लिया है और वो पोस्ट ऑप में भी मेडिकेशन उसकी कंटिन्यू रही हैं, तो देयर आर मिनिमल चांसेस ऑफ रिकरेंस. लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज में आता है हमारे पास में, जबकि उसकी आई बॉल्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं, कई बार तो ब्रेन तक भी उसका इन्फेक्शन फैल चुका होता है. ऐसे में हम कंप्लीट डिब्राइडमेंट नहीं कर पाते हैं मरीज का. अगर आम भाषा में कहूँ तो थोड़ा फंगस हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो निकालने से उसकी मरीज की जान को खतरा हो सकता है. ऐसे में हम डीबल्किंग या लोड कम करने की कोशिश करते हैं और बाकी की जो मिनिमल अमाउंट ऑफ फंगस छूट गया है उसके लिए पोस्ट ऑप में दवाइयां कंटिन्यूस देते हैं ताकि वो दवाइयों की मदद से रिग्रेस हो सके. तो ऐसे मरीज जो ऑलरेडी एडवांस स्टेजेस में आते हैं उनमें बीमारी रिकर हो सकती है. जो अर्ली स्टेज में आ जाते हैं उनका प्रोग्नोसिस भी अच्छा रहता है और उनमें रिकरेंस रेट भी काफी कम या ना बराबर ही रहता है. तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन भी है, what are the common post COVID symptoms in children below 10 years? ये एक जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स मैं आंखों के लिए बात करना चाहूंगी, बाकी के हम हमारे बाकी एक्सपर्ट से बात करेंगे. पर पोस्ट कोविड जहां तक आईज का इन्वॉल्वमेंट है, पोस्ट कोविड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ब्लड थिकन हो जाता है कई बार, जिसकी वजह से आंखों की नसों में ब्लॉकेज आ सकता है, जिसकी वजह से अचानक से धुंधलापन आ सकता है, या फिर ट्रांजिएंट इस्चीमिया जिसको हम कहते हैं कि अचानक से धुंधलापन आके फिर वापस नजर साफ हो जाती है. ये भी हो सकता है. या तो किसी की परमानेंट, बच्चों में ये रिपोर्टेड है. जो ट्रांजिएंट इस्चीमिया मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली बताया, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स आर मोर रिपोर्टेड इन चिल्ड्रन, जबकि जो अडल्ट्स हैं उनमें सडन डिमिनिशन ऑफ विजन रिपोर्टेड है. लेस पीपल आर रिपोर्टिंग ट्रांजिएंट इस्चीमिया, पर बच्चों में अचानक से नजर का धुंधला होना और फिर नजर वापस साफ हो जाना, ये इसका एक कारण ये हो सकता है कि बच्चों में जो डिजीज है वो हमेशा अब तक जो दोनों स्ट्रेन्स हैं वो उन्होंने माइल्ड सिम्टम्स दिए हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट. तो जो थिकनिंग ऑफ ब्लड होता है वो बच्चों में भी हो रहा है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं जा रहा है कि उनको परमानेंट डिमिनिशन ऑफ विजन हो या CRAO हो. केसेस रिपोर्टेड हैं लेकिन कम हैं. ट्रांजिएंट इस्चीमिया के केसेस कंपैरेटिवली ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं कि बच्चों की
धुंधलापन आया है नजर में और फिर नजर वापस साफ हो गई, ऐसे बच्चों को भी हमें मॉनिटर करना जरूरी है कि उनको जो है थ्रोम्बोसिस या फिर जो हम कहते हैं कि खून में रुकावट, नस की रुकावट डेवलप ना हो आगे जाके, तो डॉक्टर्स उसको मैनेज कर सकते हैं एंड दीज चिल्ड्रन दे डू वेल। दूसरा जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो अब तक बच्चों में रिपोर्टेड नहीं है, पर कुछ बच्चे हैं जो एट रिस्क हैं डेफिनेटली। जो हमारे आंसुओं का रास्ता रहता है जो नाक की तरफ खुलता है, वो आंसुओं के रास्ते कई बार बच्चों के बंद रहते हैं, जिसको हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, जिसमें कि बच्चे की आंख से कंटिन्यूस पानी बहता रहता है और आंख में बार बार मवाद भी आती है। तो जिन बच्चों को नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, जिनकी आंख में या आंसुओं की थैली में बार बार मवाद जमती है, उनको रिस्क है किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होना। ऐसे बच्चों को अगर कोविड हुआ है और उनका एनएलडी ब्लॉकेज का उनको प्रॉब्लम रहता है, तो उनको जो है सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है। सावधानी में जो हाइजीन है वो फर्स्ट चीज है, और अगर ऐसे बच्चों के मवाद बढ़ती है, सूजन आती है, तो उनको तुरंत हमें ईएनटी स्पेशलिस्ट और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट दोनों को दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, डॉक्टर सचिन, आई वुड वांट यू टू आंसर दिस। इज थिकनिंग ऑफ ब्लड कैन बी द रीजन ऑफ फॉर फ्रीक्वेंट नेजल ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन? नहीं, यूजुअली थिकनिंग ऑफ बच्चों में जो नेजल ब्लीड के जो कारण होते हैं दोज आर डिफरेंट। थिकनिंग ऑफ ब्लड की वजह से नेजल ब्लीड नहीं हो सकता, ब्लड रुक सकता है, वहां पे क्लॉट जम सकता है, बट इट डज नॉट लीड टू ब्लीड। अगर बच्चे को नाक से ब्लीडिंग हो रही है देन वी नीड टू इवैल्यूएट द अदर कॉजेस। क्या उसको पहले भी कभी ब्लीडिंग हुई है, या बॉडी पे कभी पकड़ने पे कोई रैशेस वगैरह हुए हैं, कभी ब्लीडिंग हुई हो तो रुकने में तकलीफ हुई हो। सर्टेन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा टू रूल आउट कंजेनाइटल कॉजेस, जिसकी वजह से जो हेमरेजिक कॉजेस हो उनको हमें रूल आउट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। डॉक्टर महिमा, आप डॉक्टर महिमा से एक क्वेश्चन रहेगा, आपसे क्वेश्चन रहेगा कि एक तो हम ओरल हेल्थ को, गुड ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इफ यू आर मेंटेनिंग पोस्ट कोविड इफेक्ट्स के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओरल हेल्थ का पोस्ट कोविड हाउ डज इट अफेक्ट द ओरल हेल्थ? पोस्ट कोविड ओरल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं, जैसे कि हाँ, मुंह में कई लोगों के छाले नेगेटिव होने के बावजूद कई टाइम तक छाले देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा सलाइवरी ग्लैंड भी इसमें काफ़ी इफेक्ट होता है, तो ड्राई माउथ जैसी कंडीशन हो जाती है। तो हम जब पेशेंट कोविड से रिकवर कर रहा होता है तब तक उसका मुंह थोड़ा सूखा रहता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड पूरा ठीक नहीं हुआ होता है। तो उन केसेस में कोविड टंग देखी गई है। कोविड टंग बेसिकली जीभ के ऊपर अल्सरेटेड पैचेस हो जाते हैं, कहीं कहीं जीभ ऊंची दिखेगी, आपको बम्प्स दिखेंगे जीभ के ऊपर, पेन रहेगा, खाते वक्त उसमें मिर्ची लगेगी या जलन महसूस होगी। इस तरह की अगर आपकी जीभ पे अपीयरेंस है तो वो कोविड टंग की अपीयरेंस है। इसके अलावा कई केसेस में देखा गया कि कोविड के दौरान हम लोग नेजल ब्रीदिंग के बजाय माउथ ब्रीदिंग ज्यादा करते हैं। तो क्योंकि हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं ऑलरेडी, हमारा सलाइवा कम होता है, तो हमारा मुंह पूरा सूखा रहता है, तो कैविटीज वगैरह भी थोड़ी ज्यादा है। हालांकि वो इतनी चिंता की बात नहीं है। ज्यादा चिंता की बात तब रहती है जब हमको जीभ पे या हमारे छाले परसिस्टेंट रहते हैं तो। लेकिन उसमें भी ये देखा गया है कि थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे हमारी रिकवरी पूरी होगी, या तो ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं होते हैं तो आप अपने डेंटिस्ट को दिखाइए, उसके लिए कुछ दवाइयां हम देते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाए। और दूसरा सवाल आपका ये था कि हम लोग ओरल हेल्थ कैसे मेंटेन करें। हाँ, क्योंकि कोविड टाइम्स में हम फ्रीक्वेंट डेंटिस्ट विजिट नहीं कर सकते हैं, जो कि ठीक है, हम लोग कुछ केसेस में ही जा सकते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लोग अपना ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें, क्योंकि उसके कारण पुअर ओरल हाइजीन की क्या क्या रिस्क है वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो गुड ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए ट्वाइस अ डे रिकमेंडेड ब्रश है। एक सुबह आप करते हैं, रात में ज़रूर करिए, बिना करे ना सोएं, क्योंकि रात ही वो टाइम है जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे मुंह में फैलता है। तो रात में ब्रश ज़रूर करें। ब्रश ट्वाइस कर रहे हैं, उसका पैटर्न प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आप फ्लॉसिंग ज़रूर करें।
फ्लॉसिंग से जो हमारे मुंह में प्लाक जमता है वो क्लीन होता है, और क्योंकि प्लाक ही है जो गम्स का इन्फेक्शन करता है, और गम्स इन्फेक्शन इज नॉट गुड फॉर कोविड, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। दूसरा, हम लोग अपना डाइट अच्छा रखें। डाइट में वाटर इनटेक बहुत रखें, क्योंकि कोविड और पोस्ट कोविड केसेस में ड्राई माउथ की बहुत तकलीफ आती है, तो हम पूरा हाइड्रेशन रखना चाहिए, मुंह हमारा सूखा ना रहे, उस बात की हम लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए वाटर इनटेक बहुत रखें, प्लस कुछ फल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि हाई फाइबर रिच हों, जैसे कि एप्पल हम ले सकते हैं या सैलड्स हम ले सकते हैं। ये चीज़ें हमारे प्लाक को भी कंट्रोल करती हैं, प्लस मुंह को हाइड्रेटेड रखती है। च्युइंगम्स आती हैं, नॉन शुगर च्युइंगम्स, उनको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। उससे हमारे मुंह में कंटिन्यूस सलाइवा बनने की वो रहती है, सलाइवा बनता है उन च्युइंगम्स की वजह से, लेकिन वो नॉन शुगरी च्युइंगम्स हो। इस बात का खास ध्यान रखें कि इस दौरान आप लोग अपना शुगर इनटेक कम रखें, जितना मीठा कम खाएंगे, क्योंकि शुगर की वजह से हमारे मुंह में ज़्यादा तकलीफ होने के चांसेस रहते हैं। तो जितना हो सके अपना शुगर इनटेक कम रखें, और बाकी अपना ओरल हाइजीन प्लस ओवरऑल हाइजीन का ध्यान रखें। Thank you so much, Dr. Mahima. Abhi, I would ask all my experts कि उनका what message they would give. तो Dr. Sachin, आप क्या message देना चाहेंगे? Yes. सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, prevention is always better than cure, and this old saying still stands true in this era of pandemic. I would call it an era of pandemic because for last 2 consecutive years we all have been facing this pandemic, and I don't think in coming maybe next year at least it will take even to go off once we all get vaccinated, and still we have to fight with this mutation of this virus. So this war is not a small war, it's not a small one. So इसलिए हमें we need to develop a COVID behavior in ourselves. We should avoid as much as public gathering as we can. Certainly if we cannot, then we should wear mask, double layer mask, and then only we should move out. Limit our self exposure to the outer, जितना ज़रूरी हो उतना ही बाहर निकलें, बेवजह बाहर ना निकलें. So we need to develop a COVID appropriate behavior. That's all I would like to say. Thank you so much, Dr. Sachin. Dr. Manushree, आप क्या बताना चाहेंगे? Your message for all our viewers. My message is overlapping with your message. Don't be anxious. जो आप which I have learned from you, and which is definitely helping me both facing all this patience and morbidity all around. और आपने जैसे I actually needed your counseling also once because of all this. तो जब डॉक्टर को खुद को आपकी काउंसलिंग की जरूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली पेशेंट्स आल्सो पैनिक अ लॉट, क्योंकि हर तरफ माहौल ऐसा है. तो खुद को शांत रखें, एंड इफ नेसेसरी दे कैन टॉक टू यू, बट डेफिनेटली डोंट गेट एंग्शियस. एंग्जाइटी विल डेफिनेटली वर्सन थिंग. दूसरा, आप अपना जो भी मैनेजमेंट है वो व्हाट्सएप या गूगल के भरोसे मत रहिए. वी हैव सीन दैट पेशेंट्स जो है दे आर ऑफन मिसगाइडेड. तो डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट्स से ही आप अपनी एडवाइस लें. प्लीज डोंट बी मिसलीडेड. It can lead to certain complications which could be prevented. So always talk to the experts, take a direct advice, and stay safe. Thank you so much. Dr. Mahima, what would you like to say to our viewers? Okay, first, being a dentist, I would say that we all know that oral health is the gateway to overall health. तो अगर हम लोग अपना मुंह और ओरल कैविटी को एकदम तंदुरुस्त रखेंगे तो हमारी आधी बीमारी वहीं रुक जाएगी जो कि बाकी शरीर में फैलती है. और दूसरा, जो कि डॉक्टर मनुश्री ने भी कहा और मैं उस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि हम लोग को अपना स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा संभाल के, मतलब नहीं, स्ट्रेस फ्री लाइफ की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी के सिनेरियो में स्ट्रेस बहुत है.
or to be, I second Dr. Manushree that no one better than Dr. Manisha can be there to help you out, to relieve your stress. So, I mean, it was a wonderful session. I'm sure it must be beneficial to all the viewers, all who are seeing, and those who will see it now. उन सब के लिए बहुत beneficial रहेगा. ये जो हमारा video है, ये जो हमारा रहा है, this will be posted on YouTube also, Dr. Manisha Positive Mind. तो वहाँ पे भी इस important session को सब लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, and yes, it will be there on the IGTV also. So this can further be seen. And I really want to thank all the experts who have come. उन्होंने अपना time अभी, because COVID time में doctors सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं. You know, selfless work जो अभी कर रहे हैं, doctors कर रहे हैं, I mean health workers कर रहे हैं, all the health workers. So आप लोगों ने उसमें अपना time निकाल के, और you have given your अपने audience को, viewers को, सबको इतनी अच्छी information दी है. Thank you so much to all three of you, Dr. Sachin, Dr. Mahima and Dr. Manushree. Thanks for coming here. And I would give this message: keep happy, keep safe and keep comfortable. And Google को अपना डॉक्टर मत बनाइए. हमारे पास experts हैं, उनसे जाके आप बात करिए and get yourself cured. Thank you so much.